Okay, so let me start today's session. Good evening all. Welcome to Ganitagya Academy. Myself Professor Hitesh, and let me start today's session. Today we are continuing exponent and power. Okay, so we have solved question number. So yes, up to question number 5 we have solved. So question number 6 I have given you as an example. So let me solve it and then we will move to next question. ठीक है, चलिए. Okay, so first question is 1/3 raised to -1. Separately I am writing. ठीक है, first I am writing separately. So 1/3 raised to -1 को can I write 3? Isn't it? Because I can write 1/3 को 3 raised to -1 and its power -1. So it is nothing but 3 raised to -1 into -1. So -1 into -1 is +1. So 3 raised to 1. Okay, so 1/3 raised to -1 I can write 3. Similarly, 1/4 raised to -1 I will write 4 raised to -1 to the power -1. So it will be 4 raised to -1 into -1. So it will be 4 raised to 1. So that will be 4. Understood? Chali. So first question is 1/3 raised to -1 minus 1/4 raised to -1 and raised to -1. So 1/3 को हम क्या लिखेंगे? 1/3 raised to -1 को 3 minus 4 and it's -1. So 3 minus 4 is -1 and -1 की power -1 is nothing but C. A raised to -1 is 1/A. So it is 1/-1. Hence answer will be -1. Understood? Write it down. Let me know when done. So we will move to next question. Okay, so let me clear this. Now next one is 5/8 raised to -7. Separately I will write. So I will write it 8/5 raised to 7. Understood? Very easy, because I can write it 8/5 raised to -1 and then -7. So it is nothing but 8/5 raised to 7. Any doubt in this? Let me know. So first one is clear. So I will write it 8 raised to 7 upon 5 raised to 7. Similarly, second thing is, so this is done. Now, second is 8/5 raised to -4. So what I'll write? I will write it 5/8 raised to +4. Now, is it clear? So I will write it 5 raised to 4 upon 8 raised to 4. Okay. So when I'll multiply it, it will be 8 raised to 7, 5 raised to 7 into 5 raised to 4, 8 raised to 4. So it will be 8 raised to 7 minus 4 divided by 5 raised to 7 minus 4. Isn't it? Because I will write it separately. 8/7 upon 8 raised to 4 into 5 raised to 4 upon 5 raised to 7. So I will write it like this. Isn't it? चलिए कैसे क्या फॉर्मूला यूज करा? A raised to B upon A raised to C. So it will be A raised to B minus C. ठीक है? चलिए. So this is nothing but 8 raised to 7 minus 4 मतलब कितना? 8 raised to 3. 5 raised to 7 minus 4 मतलब 5 raised to 3. So 8 raised to 3 कितना होता है? So or you can end like this also, but you can write 8 raised to 3 will be 512 and 5 raised to 3 is 125. So this is the answer. लिख लीजिए. चलिए, अब इसके आगे तो सॉल्व नहीं करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए. अभी 1/8 का वैल्यू होता है 0.125. तो हम 1000/8 को लिख सकते हैं 125. ठीक है.
अब आपने 1000/8 को लिख दिया 125। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान रखिए, A/B/C, A/B/C, इसका मतलब होता है A इंटू C/B। अंडरस्टूड, समझे ना? सो ये होगा A इंटू C/B। ठीक है, सो अब देखिए हमारा आंसर कितना आया है, 512/125। सो आई विल राइट इट 512/125 को कितना लिखते हैं हम, 1000/8। सो कितना हो जाएगा, 512 इंटू 8 डिवाइड बाय 1000। सो 512 इंटू 8 कितना होता है बताइए, और फिर डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए। सो 512 इंटू 8 कितना होगा, 8⁴, ये है 8⁻³ इंटू 8⁴, तो ये होता है 4096 डिवाइड बाय 1000। सो अंजलि, कैन आई राइट इट 4.096? ठीक है दीदी, सो आई कैन राइट इट 4.096। अंडरस्टूड, सो दिस इज द फाइनल आंसर। बट हमको आंसर कहां तक निकालना था, यहां तक, दैट इज करेक्ट, बट दिस इज वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस नाउ। दिस वाज आल्सो होमवर्क क्वेश्चन, सो लेट मी सॉल्व इट वेरी इमीडिएटली। आप कर चुके हैं सॉल्व, चलिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 5 को हम लिखेंगे, 25 को आई विल राइट 5 स्क्वायर। 25 को हमने लिखा 5 स्क्वायर, e⁻⁻4 डिवाइड बाय 5⁻⁻3। 10 को हमने लिखा 5 इंटू 2। ठीक है, t⁻8। ठीक है, इट इज t⁻8। अब ध्यान दीजिए, अभी आपने लिखा है A/B/A⁻C इज A⁻B-C। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। अच्छा, और आपको पता है A⁻M इंटू A⁻N क्या लिखा था हमने, A⁻M+N। ठीक है, चलिए ये 5 स्क्वायर है, यहाँ पर है 5³ इंटू 5। सो आई विल राइट 5⁻³ + 1 बिकॉज 5 इज 5⁻1 इंटू t⁻4 अपॉन t⁻8 and 1/2 extra. Understood? No doubt? Let me go ahead now. 5⁻2 अपॉन 5⁻2 -3 + 1 कितना, -2 इंटू t⁻4 t⁻8 1/2. Now next step, we will follow this step. तो यहां पर क्या होगा, 5 ये b हो गया 2 and -2, so it is -2. Similarly t -4 -8 and it is 1/2. Understood? So now it will be 5⁻4 into t⁻4 + 8। चलिए पहले ऐसा लिखते हैं, and then 1/2. So it will be t⁻4 8 - 4 4 into 5⁴ अपॉन, समझे? तो 5⁴ कितना होता है, 625/2 इंटू t⁻4। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन इज डन। चलिए लिख लीजिए, बताइए फिर मुझे। ओके, तो डन सभी का, लेट मी क्लियर दिस। ओके, लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होगा, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 3⁻⁻5, इसको सेम लिखिए। 10⁻⁻5, ठीक है। 125 कितना होता है पता है आपको, 125 होता है 5³, ठीक है, डिवाइड बाय
5 रेस टू -7 एंड 6 रेस टू -5। ठीक है, चलिए तो हमने कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10 को लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, a रेस टू mn, ठीक है, a रेस टू mn क्या होता है, ये a की पावर m फिर a की पावर n, ठीक है, याद है। हाँ, ना कैन यू राइट a इंटू b की पावर m, a की पावर m इंटू b की पावर m, ठीक है। सो 10 की पावर -5 को हमने लिखा, 10 को लिखा 2 इंटू 5 की पावर -5, सो इट विल बी 2 रेस टू -5 इंटू 5 रेस टू इंटू 5 रेस टू -5, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 6 रेस टू -5, आई विल राइट इट 2 इंटू 3 रेस टू -5, so it will be 2 की पावर -5 and then 3 की पावर -5, ठीक है। बस इसी को ही करके आगे बढ़ जाइए। चलिए, सो नाउ नेक्स्ट इज, लेट मी राइट हियर, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ से एंड साथ में लिखते जाइएगा। सो 3 रेस टू -5, 10 की पावर -5 को क्या लिख दिया है हमने, 10 की पावर -5 को क्या लिख दिया है, 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, ठीक है, इंटू 5 क्यूब डिवाइड बाय 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5 को क्या लिखा है हमने, यहाँ पर लिख दीजिए 2 की पावर -5, 3 की पावर -5। अब देखिए मुझे बताइए, क्या 2 की पावर -5 2 की पावर -5 से कैंसल, बताया था उस दिन आपको मैंने कैसे कैंसल, क्योंकि किसी की पावर 0 1, 3 की पावर -5 3 की पावर -5 कैंसल, डन। चलिए अब लिखिए 5 की पावर -5 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर -7, ठीक है। अब बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 1 अपॉन a की पावर -m इज इक्वल टू a की पावर m, ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया ना। चलिए, सो 5 की पावर -5 5 की पावर 3 एंड इसको हम लिख दिए 5 की पावर 7। नाउ यू नो दैट बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, सो 5 की पावर -5 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है ना, मालूम है प्रॉपर्टी, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p, सो कितना हो गया 5 की पावर 7 प्लस 3 10 10 -5 5, सो 5 की पावर 5 इज 625 इंटू 5, सो दैट इज कॉल्ड 3125। तो 5 की पावर 5 कितना होगा, देखिए 5 की पावर 3 कितना 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 होता है 3125, ठीक है। चलिए राइट इट डाउन, लेट मी नो व्हेन डन, अच्छे समझ के, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, लिखिए और बताइए। चलिए, सो मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इमीडिएटली बिल्कुल फास्ट रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए, हमने क्या करा, 3 रेस टू -5 इंटू 10 की पावर -5 को हमने लिखा 2 इंटू 5 और इसकी पावर -5, 125 को हमने लिखा 5 क्यूब, 5 की पावर -7 को क्या लिखा 5 की पावर -7, 6 की पावर -5 को क्या लिखा 2 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, 3 रेस टू -5 सेम लिखो, 3 रेस टू -5, 3 रेस टू -5 ही लिखा, फिर इसको लिख दिया 2 की पावर -5 एंड 5 की पावर -5, समझे ना, 5 की पावर -5 इंटू 5 क्यूब डिवाइड बाय
ये हो जाएगा सेम 5 की पावर माइनस 7, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर माइनस 5 एंड 3 की पावर माइनस 5। ठीक है, अब क्या करा यान, ये 3 की पावर माइनस 5, तो 3 की पावर माइनस 5 न्यूमरेटर में, 3 की पावर माइनस 5 डिनोमिनेटर में। इसका मतलब क्या है, a की पावर b अपॉन a की पावर b। सो a की पावर b माइनस b मतलब a की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको हम बोलते हैं 1। ठीक है, तो इस तरीके से 3 रेज टू माइनस 5 एंड 3 रेज टू माइनस 5 क्या बन जाएगा 1। वैसे ही 2 रेज टू माइनस 5 और 2 रेज टू माइनस 5 क्या बन गया 1। तो इसलिए हमने लिख दिया 1 इंटू 1 इंटू 5 की पावर माइनस 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर माइनस 7। फिर इसको लिख दिया 5 की पावर माइनस 5, 5 की पावर 3 एंड 1 अपॉन 5 की पावर माइनस 7 लिख दिया 5 की पावर 7। सो फिर क्या हो गया 7 प्लस 3 माइनस 5 दैट इज 5 रेज टू 5, और इसको हमने लिखा 3125। सभी को क्लियर है? चलिए, सो लेट मी क्लियर दिस नाउ। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट मी गिव यू सम आइडियाज ऑफ नंबर 1। चलिए, अभी मैं बैठा हूं कहां पर, मुंबई, है ना। कोई लोग कहां पर है, आप लोग हैं, कोई है लखनऊ, कोई है इलाहाबाद, कोई है इंदौर। तो मान लीजिए ये रहा इंदौर, ठीक है, एंड यहां पर रहा आप मान लीजिए यूपी, है ना, यूपी में इलाहाबाद, लखनऊ, जो भी। ठीक, सो अभी देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नंबर 1 इसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ सबसे पहले अदिति, मुंबई और इंदौर के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी इन दोनों के बीच कितनी है 700 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई और यूपी में अलग अलग जगह है, मान लीजिए बनारस। चलिए हम बात करते हैं बनारस से। तो मुंबई से बनारस का दूरी कितना है पता है आपको, ये है लगभग 2300 किलोमीटर, है ना, या फिर 2000 किलोमीटर और वॉट एवर, है ना, अप्रॉक्स मान के चलते हैं 2000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हुआ, द पॉइंट इज दिस इज द यूनिट, क्या है किलोमीटर। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ, ये तो बहुत दूरी के हो गए। अभी मुंबई के पास में क्या है पुणे, क्या है पुणे। अब पुणे और मुंबई का दूरी कितना किलोमीटर है, वो है मात्र 200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो एक हो गया 700 किलोमीटर, फिर हो गया 2000 किलोमीटर, फिर हो गया 200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 200 किलोमीटर, नाउ 700 किलोमीटर, लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए, अब अगर पूछा जाए कि अदिति का घर और अदिति का स्कूल कितना दूर है, तो मान लीजिए कितना हुआ 3 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए आस्था और अदिति के बीच, घर के बीच का दूरी मान लीजिए कितना है, वो 500.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। तो जब ये 0.5 किलोमीटर आ गया, सो आई कैन राइट इट स्मॉलर यूनिट, किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट, हम क्या बोलेंगे इसको 500 मीटर। तब हम नहीं बोलेंगे 0.5 किलोमीटर, तब हम प्रेफर करेंगे 500 मीटर। ठीक है, समझे। चलिए, फिर उसके बाद में आपसे कोई पूछा गया कि आप जिस पेन से लिखते हैं उस पेन का साइज कितना है, तो अब क्या वो साइज किस में होगा, पेन साइज अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर नई यूनिट आ गई, समझे। अब देखिए, अब क्या हुआ, अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसका जो निप वो है पॉइंट है, पिन पॉइंट है, उसका वो सर्कल है, इस टाइप से है, तो उसका डायमीटर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे सेंटीमीटर में बोलेंगे, नहीं, आप कितना बोलेंगे 3 mm, मिलीमीटर। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी दूरी का, डिस्टेंस का मेजर करने जाएं,
तो हम किस चीज में करते हैं, हम करते हैं किलोमीटर में, हम करते हैं मीटर में, हम करते हैं सेंटीमीटर में, हम करते हैं एमएम में, अलग अलग। ये तो एसआई यूनिट से है ना, कभी हम यार्ड उसमें फीट में भी करेंगे, इंच में भी करेंगे, बट जनरल यूनिट इज दिस वन। पहले हम इसकी बात करते हैं, समझे। सो इन सब में आपस में रिलेशन क्या है वो बढ़ते हैं। एक ओवरव्यू समझे, पूरा जरूरत नहीं लिखने का, जितना समझे बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए, सो that is only for understanding. Let me write it now very clearly. So किलोमीटर इज क्या बोलेंगे हम इसको, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस और लेंथ, ठीक है। चलिए, सो एक हो गया किलोमीटर फॉर बिगर लेंथ और बिगर डिस्टेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हमने, मीटर। सो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन इज 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज मीटर से छोटा सेंटीमीटर, ठीक है। सो मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। एक डेसीमीटर भी होता है, दैट इज बिटवीन सेंटीमीटर एंड दिस वन। चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं, एमएम दैट इज मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर और एमएम में क्या रिलेशन होता है, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कैन यू से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमएम, मीटर एंड एमएम, एंड किलोमीटर एंड एमएम, बता सकते हैं क्या? पहले इतना लिखिए, बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, सो वी हैव रिटन रिलेशन। चलिए, सो अब देखिए, नाउ यू आर हैविंग 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर को हमने लिखा 1000 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर को हमने कितना लिखा, 100 सेंटीमीटर। सो आई विल राइट 1000 इंटू 1 मीटर, समझे ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 मीटर। सो आई कैन राइट 1000 इंटू 1 मीटर को आई कैन राइट 100 सेंटीमीटर। सो यू नो 1 kilometer is equal to 1000 into 100 centimeter. So it is 1000 into 100. So 00. अभी हमको लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि 1 के बाद में 10 I will write 10⁻1. 1 के बाद में 20 I will write 10⁻2. 1 के बाद में 30 I will write 10⁻3. अंडरस्टूड। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर के बाद में इसमें 1 के बाद में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5. सो आई विल राइट 10⁻5 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, समझे क्या? कोई डाउट है किसी को? लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे समझिए, ध्यान देना, आस्था दीदी अयान, ध्यान से। 1 किलोमीटर is equal to 10⁻5 centimeter. Also, I can write 1 centimeter is equal to 1 kilometer upon 10⁻5. इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर is equal to 10⁻⁻5 किलोमीटर, समझे? लिखिए अच्छे से समझ के और पूछिए कोई डाउट है क्या, देन इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सो लेट मी क्लियर दिस, लेट मी रिपीट इट, बहुत अच्छे से ध्यान से फिर से सुनिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये समझा सभी लोग? yes, नाउ 1000 इंटू मीटर, 1 मीटर को हम कितना लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, ये भी सभी लोग समझ गए, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया 1 की 30 एंड 2 more 0, सो दिस मच सेंटीमीटर।
सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, दिस में सेंटीमीटर, तो इसको हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, सो 10⁵ सेंटीमीटर। ये यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम ले गए इसके डिनोमिनेटर में। देखिए आपके पास अगर है ए बी इक्वल टू सी डी, तो क्या आप लिख सकते हैं ए अपॉन सी इक्वल टू डी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आई कैन राइट ए सी, सॉरी, ए अपॉन सी इक्वल टू डी अपॉन बी। तो सिमिलरली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं अयान 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और ये 10⁵ को ले गए डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻, देखिए 1 अपॉन ए रेस टू बी इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस बी, देखा था लास्ट क्लास में। सो इट इज 10⁻⁻5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁵5 और 10⁻⁻5 किलोमीटर। एंड सिमिलरली क्या लिखेंगे, साथ में लिख लो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁵5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻5 किलोमीटर। चलिए बताइए, लिख लो, तो को डाउट हो तो पूछो अभी भी। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा इसको हम ट्रिकी बताएंगे, देखो ध्यान देना आप। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁵5 मतलब 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब 10⁻⁻5 को हम क्या लिखेंगे, उसके लिए ध्यान दो, यहाँ पर उसके लिए इतना लिख लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं अच्छे से समझाता हूँ। इतना हुआ सभी का? नो सर, अभी रुक गई थोड़ा। ओके तो हो गया। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस। अभी देखो, अभी हमने क्या लिखा है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁵5 सेंटीमीटर, मतलब 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बताइए पहले, 1 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, ठीक है। 1 अपॉन 100 को क्या लिखेंगे, 0.01, ठीक है। अब आप पैटर्न समझिएगा, 1 अपॉन 10 मतलब 0.1, 1 अपॉन 100 मतलब 0.01, 1 अपॉन 1000 0.001, समझे। वैसे ही 1 अपॉन 1 2 3 4 कितना, 0.0001, समझे। नाउ 1 अपॉन 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिए, यहां पर अगर 4 जीरो से तो यहां पर 3 जीरो से, यहाँ पर 3 जीरो तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं, यहाँ पर 2 जीरो तो यहाँ पर 1 जीरो, ठीक है। सो पॉइंट कितने आना चाहिए, 0 0 0 0 4 0 एंड देन 1। अंडरस्टूड क्या सभी को? तो इसको हम लिखते हैं 10⁻⁻1 कितना होता है, 0.1। 10⁻⁻2 कितना होता है, 0.01। 10⁻⁻3 कितना होता है, 0.001। 10⁻⁻4 कितना होता है, 0.0001। 10⁻⁻5 कितना होता है, 0.0001, समझे। ये हमने क्यों लिखाया, ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻5 किलोमीटर, तो आई कैन राइट 0.0001 इतना किलोमीटर, समझे, ठीक है। लिखिए अच्छे से। ओके, सो दिस मच क्लियर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये जो सेंटीमीटर, किलोमीटर है ना, मीटर, ये सब क्या है, यूनिट्स है मेजरमेंट की। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा, तो कहां से स्टार्ट हुए थे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000
and 20 this much centimeter. अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. ठीक है, सो कैन आई राइट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर. सो इज इक्वल टू 10⁵ into 1 centimeter. So 1 centimeter को I have written 10 mm. So then I will write it 10⁵ into 10⁻1 mm. So this is nothing but 10⁶ mm. ठीक है, so 10⁶ मतलब कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 इतना mm, और ये कितना है 1 किलोमीटर. सिमिलरली अयान, क्या हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁶ mm, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10⁶ mm इज इक्वल टू 1 mm इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोमीटर. समझे? इसको हम पॉइंट में कैसा लिखेंगे, -6 है तो कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे, 0.1 2 3 4 5 एंड देन 1 इतना किलोमीटर. ठीक है, चलिए लिखिए. ओके, सो लेट मी क्लियर दिस नाउ. चलिए अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, अब क्वेश्चंस आप मैथ्स के टर्म में मत करिए, साइंस से रिलेट करके करिए तो ही मजा आएगा. अब देखिए, हमको ये बोला है कि ये जो नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए. अभी अयान ध्यान दीजिए, जी सर. इस 85 को अभी भूल जाइए, इसको मैंने लिख दिया है 85. चलिए 85 अभी भूल जाइए, अभी 85 की जगह क्या है, हमने इसको लिख दिया कितने, देखो 0.00, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 85 की जगह हमने लिख दिया 1. क्या लिख दिया 85 की जगह, अभी 1 लिख दिया. ठीक है, अभी इसको, इस क्वेश्चन नहीं, हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, है ना, समझने के लिए. चलिए, तो अभी हमने आपको क्या बताया, ध्यान दो, जब 10⁻⁻1 था तो हमने लिखा 0.1, 10⁻⁻2 था तो हमने लिखा 0.01, 10⁻⁻3 को हमने कितना लिखा, 0.001, 10⁻⁻4 को कितना लिखा, 0.0001. मतलब जब ये -4 है, मतलब ये पावर 4 है तो हमने 3 जीरो लिखे. -5 रहेगा तो हम कितने जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4. तो कैन आई राइट इट, कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो कैन आई राइट 10⁻⁻12. यस सर. परफेक्ट. चलिए इतना समझ गए. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं, अब देखिए 1 की जगह क्या है, 8 है, 1 को हटा के लिख दो 8, 1 को हटा के लिख दिया 8. तो अगर 1 को हटा के 8 लिखा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻12. समझ गए सर? 85. अभी नहीं, अभी मैं इसका बात कर रहा हूँ, अभी हम 85 की नहीं, अभी इसकी बात कर रहे हैं, ये समझे? ओके सर. है ना, इतना समझे. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट एक 5 और लगाएंगे आगे. सो ये हो जाएगा, इट विल बी, इसको हम लिखेंगे 85 इंटू 10⁻⁻13, या फिर मैं इसको लिखूंगा 8.5 इंटू 10⁻⁻12. मे बी इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, आई विल टेल यू अदर मेथड ऑल्सो, बट इतना समझे क्या. इसके बाद में 5 है तो यहाँ पर पॉइंट करके लगाना पड़ेगा, और 10⁻⁻12. समझे? -12.
चलिए इतना समझे, ये है मेथड नंबर 1। चलिए और सिंपलर मेथड बताने की कोशिश करता हूं आपको। So let me clear this. यहाँ तक डाउट तो नहीं किसी को? Okay, so let me clear this. This is method number 1. Now, तो इसका आंसर हमने क्या लिखा? 8.5 into कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हम लिखेंगे 10 raised to power minus 12। समझ गए ना क्यों? चलिए तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 सेकेंड मेथड, इसका ही सेकेंड मेथड। आप क्या करो इसमें, आप जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डॉट है वो शिफ्ट होकर इधर हो जाएगा। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट शिफ्ट होकर इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप जब 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया, तो आपने क्या करेंगे इसमें 0.0000000085 इसमें आपने 10 रेज़ टू पावर 12 का मल्टीप्लाई करा और 10 रेज़ टू पावर 12 का डिवाइड करा। समझे क्या क्या बोल रहे हैं? जब 10 रेज़ टू पावर 12 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बार डॉट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। When multiplied by 10 raised to 12 dot, ये डॉट will be shifted, will be shifted। ये आपको है ना, हो सकता है स्क्रीन में थोड़ा इंक्लाइंड दिखे, मुझे ये स्क्रीन में है ना थोड़ा लिखने में, पूरा लाइन में लिखने में प्रॉब्लम आता है। व्हाइट बोर्ड होता तो हम अच्छे से लिख पाते। सो व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 12 डॉट विल बी शिफ्टेड कितने टाइम? 12 टाइम। विल बी शिफ्टेड 12 टाइम्स। समझे? तो नीचे वाले 10 रेज़ टू पावर 12 को ही रहने दीजिए, एंड ऊपर वाले में क्या होगा, इस डॉट को 12 बार शिफ्ट कर दीजिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12, तो क्या आ गया 8.5। समझे? तो ये हो गया 8.5 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 12 का मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस नाउ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस 1। अच्छा चलिए, सो अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आयन ये 9 के पहले तक ही जाइए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 9 भी अगर इसमें 11 जीरो है और 9 12th नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। समझे क्या? चलिए समझाता हूँ कैसे। 0.000000000942 10 रेज़ टू पावर 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 रेज़ टू पावर 12 से डिवाइड करिए। तो जब इसका 10 रेज़ टू पावर 12 में डिवाइड किया, सो डॉट कितनी तरफ आ जाएगा, राइट साइड में 12 तरफ आ जाएगा, 12 टाइम्स इधर आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 9.42 एंड डिवाइड में कितना हो गया 10 रेज़ टू पावर 12। सो आई कैन राइट इट 9.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। सो सेकेंड वन इज ऑल्सो, ठीक है लिख लीजिए। So let me clear these next questions। चलिए इन सभी क्वेश्चन को करिए। चलिए, सो द पॉइंट इज अयान, जब इसके अंदर अब क्या है पॉजिटिव 0 है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव 0 से तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम 1 2 3 कितने 0 हैं 4 प्लस 4 8 12 13 14 15, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें ध्यान दीजिए। 6 तक आने में कितना लगा 15,
तो हम क्या लिख देंगे 6.02 इंटू 10⁻15। ये तो बहुत इजी है, समझे क्या करा हमने, ध्यान दो, फिर से लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए 6 के लेकर बाद तक कितने डिजिट हैं वो काउंट कर लीजिए। 6 के लेकर बाद तक कितने डिजिट है वो काउंट कर लीजिए। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको लिख दीजिए 6.02 इंटू 10⁻15। ये हो गया मेथड नंबर 1, मतलब ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लेंगे इसको 60 से, अयान अगर इसको हम लेते कहां से 60 से, तो कितने डिजिट होते हैं 14। तो हम क्या लिखेंगे इसको 60.2 इंटू 10⁻14। वो भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये दोनों सेम ही वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर हम इसको लेते 602 से, कहां से लेते 602 से, तो कितने जीरो है 13। तो हम लिखते 602 इंटू 10⁻13, वो भी सही आंसर है, समझे, राइट इट डाउन। चलिए ओके, so now these two questions I am giving you as a homework, solve it and then send the answers on our WhatsApp group, ठीक है। and with this we will end our session, in next session we will complete this। ये तो केवल 3 चैप्टर क्वेश्चन ही है इसके अंदर, है ना, so the solution I will provide you and then we will solve some difficult questions of this chapter, ठीक है। चलिए write it down and with this we will end our session। और मुझे 4th और 5 का क्वेश्चन आंसर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, ठीक है, लिखिए। चलिए तो विद दिस लेट वी एंड अवर सेशन टुडे। होमवर्क क्वेश्चन इज 4th वन एंड 5th वन, ठीक है। चलिए सर हाँ बोलिए।